Hello everyone, welcome to my channel Learn English with Radha. First of all, I regret because I'm uploading my videos so late. It's almost 1 month uh, because I got busy in my stuffs, so I was unable to upload my videos. So lot in my previous videos I have covered so many parts, so many leaves of part of speech. Like I have covered adjectives, verbs, noun, pronoun, and formation of sentences. So my today's topic is adverb. So you know what is an adverb? In Hindi, adverb is kriya visheshan. Okay? So first फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड टेल यू दैट एडवर्ब को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वी डिवाइड इट इन अ 7 पार्ट्स. फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, सेकेंड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, एंड द नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, फोर्थ वन इज एडवर्ब ऑफ नंबर, and fifth one adverb of degree, and the sixth adverb of affirmation, negation, and doubt, and the last one is adverb of interrogation. Okay, let's start one by one how we define the adverbs. Okay, the first one is adverb of time. Time means when the work is going to happen. काम कब हो रहा है, जो काम का समय बताए, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. लाइक आई गो टू स्कूल डेली, राइट, मैं डेली स्कूल जाती हूँ, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. ही केम हियर yesterday. So today, Delhi, tomorrow, yesterday, early, soon, late, ago, before, now, immediately, already, formerly. These are the examples of adverb of time. Okay, when you see these kind of words, you can immediately judge that this is the adverb of time. Okay, next is adverb of place. Adverb of place, as the place indicate that जहाँ पर काम हो रहा है, the place of the work, काम का स्थान, that is adverb of place. Like she looked up means उसने ऊपर देखा. कहाँ देखा उसने? ऊपर देखा. So ऊपर is the place. So that is up is the adverb of place here. He has gone out. वो बाहर चला गया. So out, what is out here? Out is adverb of place. Is that clear? So there are some words which indicates the place of adverb. Here, there, up, inside, outside, above, below, far, near, away, hither, thither, forward, backward, out, elsewhere, everywhere, etc. So these are the examples, these are the words which indicate that the sentence is related to adverb of place. Is that clear? Next we move to the third one, adverb of manner. Manner means जो ये शो करे कि कार्य किस तरह का है, किस तरह का काम हो रहा है. ठीक है, कैसे काम हो रहा है. आंसर वो क्या करेगा हमें, हाउ का आंसर, हम कैसे उस काम को कर रहे हैं, दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. लाइक ही रीड्स स्लोली, वो धीरे धीरे पढ़ रहा है या धीरे से पढ़ रहा है.
सो वो काम कैसे हो रहा है? धीरे धीरे. सो स्लोली इज द वर्ड विच इंडिकेट्स द एडवर्ब ऑफ मैनर. राइट. दे तेज भागे. फास्ट. फास्ट इज एडवर्ब. एडवर्ब ऑफ मैनर. Is that clear? So there are some words like wisely, foolishly, badly, quickly, gladly, nicely, clearly, okay, slowly, well, thus, fast, hard. So these are some words which shows that the sentence has the adverb of manner. ओके. ये वर्ड्स जिस भी सेंटेंस में आते हैं तो वो क्या इंडिकेट करता है कि जो सेंटेंस है इसमें एडवर्ब है, और एडवर्ब क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है. ओके. ओके. नेक्स्ट इज आर एडवर्ब ऑफ नंबर. जैसे कि नेम से ही क्लियर होता है कि जो फ्रीक्वेंसी बताए कि काम कितनी बार हुआ. एक बार हुआ, 2 बार हुआ, बार बार हुआ. सो दैट इज एडवर्ब ऑफ नंबर. ओके. सो इसमें वर्ड्स कौन कौन से आते हैं? देखिए, नेवर, ऑफन, वंस, सेल्डम, ऑलवेज, अगेन, ट्वाइस, थ्राइस, सेकेंडली, थर्डली, फ्रीक्वेंटली. ओके. सो ये वर्ड्स जिस भी सेंटेंस में आ रहे हैं तो उसमें हम क्या कहेंगे कि ये सेंटेंस इसमें एडवर्ब है. और कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ नंबर. सो आई गिव यू वन सेंटेंस. द सेंटेंस इज ही इज सेल्डम लेट. वो बाई चांस ही लेट होता है. तो द वर्ड सेल्डम इंडिकेट द एडवर्ब ऑफ नंबर. ओके. यू आर ऑलवेज लेट. आप हमेशा ही लेट होते हो. ओके. सो व्हाट ऑलवेज हियर? ऑलवेज इज द एडवर्ब ऑफ नंबर. क्लियर? शैल वी मूव ऑन? ओके. सो द नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ डिग्री इज व्हाट? जो हमें ये बताता है कि कितना काम हुआ. ओके. इसमें जो आपके वर्ड्स आते हैं दैट इज वेरी, मच, क्वाइट, ऑलमोस्ट, रेदर, नियरली, पार्टली, कंप्लीट, फुली, एनफ, altogether, entirely, hardly, more, most, less. ओके. अब इन्हें वर्ड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं? एडवर्ब को कैसे हम यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में? शी इज़ कम्प्लीटली टायर्ड. वो पूरी तरह से थक गई है. कितनी थक गई है? पूरी तरह से. सो दैट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. द वाटर इज रेदर हॉट. ओके. ही इज़ मच प्लीज्ड टू सी मी. उसे मुझे देखकर बहुत खुशी हुई. Okay, so that is the measurement. So it is adverb of degree. The second last is adverb of affirmation, negation and doubt. जहाँ पर आंसर हमें मिल रहा है हाँ में, ना में, या कुछ डाउट है, तो वो जो है सेंटेंस वो क्या बताता है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, नेगेशन एंड डाउट्स का. इसमें कौन से वर्ड्स आते हैं? जैसे yes, no, not, indeed, perhaps, certainly, scarcely, surely, possibly, by all means, likely, etc. ओके. सो ये वर्ड्स जहाँ भी आ रहे हैं वो हमें क्या बताएंगे कि ये एडवर्ब है. इफ़ yes में आंसर है तो ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएगा. इफ़ नॉट में आंसर है तो ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो जाएगा. और हम परहैप्स यूज़ कर रहे हैं तो ये एडवर्ब ऑफ डाउट हो जाएगा. लाइक अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. वो सच में
सच्चा मित्र है जो मुसीबत में काम आए. Okay, so this is indeed is the adverb of affirmation. See, in this sentence, he certainly attended the meeting. तो certainly यहाँ पर हमें श्योरिटी है, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी तो नहीं है, कोई डाउट्स भी नहीं है. उसने कहा certainly मैं आपकी मीटिंग अटेंड उसने की है. तो हम इसमें ये हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ, कौन सी एडवर्ब है यहाँ पर? यहाँ पे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होगा, बिकॉज देयर इज़ नो डाउट. ठीक. नेक्स्ट इज आई श्योरली डू योर वर्क. यहाँ पर भी श्योरिटी है कि मैं ज़रूर आपका काम करूँगा. सो ये यहाँ पर कौन सा होगा? अगेन एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन. ओके. नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन. ओके, एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन में देखिए जहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाए, सो दैट इज़ एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन. वेयर डज ही लिव, कहाँ रहता है वो? सो वेयर इज़ द एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन. व्हेन डू यू सी हिम लास्ट, आपने उसे कब देखा था, लास्ट कब देखा था? सो व्हेन इज़ एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन. अब क्वेश्चन मार्क के कौन से वो वर्ड्स होते हैं, जैसे हमारे पास हाउ, विच, वेयर, वाई, ठीक है. सो इस तरह के जो वर्ड्स आ जाएं तो वो हमारे कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन. आई जस्ट होप यू लाइक माई वीडियो. एंड मैंने पहले भी बहुत से वीडियो हमने जो कवर की हैं आपने देखे होंगे. एंड थैंक्स फॉर अप्रिसिएशन, आपने मुझे अप्रिशिएट किया. एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. इफ़ आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो मेरे वीडियोस को लेकर, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या कुछ ऐसा लग रहा हो कि भाई कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं. मैं आपके कमेंट डेली रीड करती हूँ. कुछ भी कन्फ्यूजन है तो फील फ्री टू आस्क मी. ओके. सो इससे क्या होगा कि नॉलेज ही एनहेंस होगी. सो थैंक यू फॉर दिस टाइम.